1 minute. The line on minorities is there, includes and he SC, read it in toto. No. Priyanka Bharti, the question today is simply redistribution of wealth. When it is spoken has a connotation. I want to ask you, polarization blame on the Prime Minister, but no polarization blame on the opposition. When Anand Ranganathan, when Harshvardhan Tripathi ji, all have raised, everybody has erred on this one. And when minorities, especially the minorities, are spoken about, personal laws of minorities are spoken, why doesn't this get treated as communal as well? Navika ji, thank you. I just want to thank you because when you started the show, there was a line, has the politics of division begun? Yes, it has. India has seen 14 total prime ministers, but no one in the history of India has seen such a communal prime minister as Narendra Modi. He's a casteist, corrupt and communal prime minister. And why I'm saying so, casteist, because as Manmohan Singh said earlier, he mentioned about SCs, STs, OBCs, but he cannot look at that. Casteist because Narendra Damodar Das Modi does not want caste census to happen. He does not want OBCs to get rights. I'm saying communal because he mentioned minorities. According to what Modi said, no, Shehzad Poonawalla is sitting here. His citizenship also be taken away because he's a Guspati, according to Modi, not according to me. Why casteist I said, why communal I said, why corrupt I am saying because of PM care funds ghotala, because of this. Chalo, now change the goalpost. Now coming to your question. Change the goalpost and now go coming to your question, why mentioning minorities? I don't know how many of the people are aware here. In 2006, such a committee report was released, and that showed what is the condition of Muslims in India. That is why it was mentioned particularly minorities, Muslims. So how can this become communal? तो बाकी now I will tell you. Now I will tell you. नहीं now सिर्फ सच्चर कमेटी में मुस्लिम्स तो नहीं थे, बाकी माइनॉरिटीज का भी ध्यान कर लेते. किसी ने मना किया था कि जैन सिख के बारे में मत सोचो. और हर्षवर्धन त्रिपाठी एक सवाल जो तहसीन ने मंगलसूत्र वाला उठाया था, उस पर आप कुछ कहना चाह रहे थे. हर्षवर्धन त्रिपाठी, पहले मंगलसूत्र वाला जो कमेंट है, हाउ डू यू जस्टिफाई? मंगलसूत्र पे आ रहे हैं ना, तो मोदी जी से बड़ा स्नैचर मंगलसूत्र का कौन होगा जिन्होंने अपनी वाइफ को कॉन्स्टिट्यूशन ये तरीका नहीं. अब मुझे बोलना पड़ेगा नाविका जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला. मुझे अवसर दीजिए काउंटर करने का, क्योंकि ये सारी चीजें मेरी पार्टी के खिलाफ बोली जा रही है. हर्षवर्धन जी, आपसे इजाजत लेते हुए, क्योंकि देखिए एक तहसीन पूनावाला फिट थ्रो करता है, दूसरे पूनावाला भगवत्ता रहता है, तो मेरी बात हो जाने दीजिए. कास्टिस्ट, क्योंकि हम कास्ट सेंसस अपोज कर रहे हैं. प्रियंका जी पूरा सुनिएगा, बीच में मत बोलिए. अब आपकी बारी होगी, मेरी बारी है. 1951 में कास्ट, प्लीज मैडम, 1951 में कास्ट सेंसस रोका किसने? 1970s टू 80, बीच में नहीं बोलना है अब आपको. मेरी बात सुन के उसके बाद आप थोड़ा कल्चर. हाँ, ये आपकी रैली नहीं है कि एक दूसरे का सिर तोड़िएगा. ये रांची की रैली नहीं है नाविका. ये तरीका नहीं है. ऑलराइट, मेक योर पॉइंट शहजाद. इन्होंने कास्टिस्ट कम्युनल करप्ट बोला. कास्टिस्ट 1951 में सेंसस रोका किस? 1980 में जब मंडल रिपोर्ट आ गई थी तो किसने उसका विरोध किया? इंदिरा गांधी जी ने. फिर राजीव गांधी जी ने बोला ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर. और प्लीज मैडम, प्लीज बीच में मत रुकवाइए मैडम, प्लीज. ये तरीका नहीं हो सकता नाविका. दिस इज नॉट राइट. नाविका, I'm lowering your fader, प्रियंका जी. पहले सुन लीजिए, then you can come in. Complete your point. मैं पूरा फिर से शुरू करूंगा क्योंकि बार बार मुझे डिस्टर्ब किया गया. कास्टिस्ट बोलती है तो 1951 में कास्ट सेंसस रोका किसने? 1980 से लेकर 1990 तक मंडल कमीशन आयोग की रिपोर्ट का विरोध किया किसने? राजीव और इंदिरा ने. जब इसको लागू किया गया वीपी सिंह की गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको बीजेपी सपोर्ट कर रही थी, तो राजीव गांधी ने उसका विरोध किया पार्लियामेंट में खड़े होकर. वो कास्टिस्ट या पहले देश के प्रधानमंत्री, ओबीसी प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपना टेन्योर कंप्लीट किया है, जिन्होंने संवैधानिक स्टेटस दिया है, जिसकी सबसे ज्यादा ओबीसी एमपीज है, जिसके सबसे ज्यादा ओबीसी मंत्री है, वो कास्टिस्ट है. दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, हमने तो अभी मोहन यादव को बनाया, आपने तो रेवंत रेड्डी को बनाया जिन्होंने ओबीसी कास्ट को गाली दी. तीसरी बात, करप्ट. चारा घोटाले में कन्विक्ट हुए लोग हमें बोल रहे हैं करप्ट. मैं तो सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं, इनसे पूछिए ना कि इतना इनको रीडिस्ट्रीब्यूशन का शौक है तो 37 करोड़ संपत्ति है अखिलेश जी की, ये तो सोशलिस्ट पार्टी के है. भाई बांट दीजिए ना अपने कार्यकर्ताओं में, यादवों में बांट दीजिए. आरजेडी के लालू तेजस्वी यादव की 4-5 करोड़ ऑलमोस्ट उनकी संपत्ति है, और राहुल गांधी की भी
4 करोड़ है। अपनी संपत्ति डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी है, दूसरों की संपत्ति छीनकर। और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, तहसीन पुनावाला कह रहे मंगलसूत्र शब्द कहां है, जिसका जवाब हर्षवर्धन जी से ले रही। मान्यवर, कांग्रेस ने इसको न्याय पत्र बोला है, मैनिफेस्टो नहीं बोला है, तो क्या आप कहेंगे ये उनका मैनिफेस्टो भी नहीं है?